Good morning to everyone. We have started with the new chapter, that is investment accounting. As I had explained you yesterday, in investment accounting, it may be an individual or a company who is purchasing and selling securities. So the first type of sums today we will start with, as I had told you, there are two types of investment. One is fixed income bearing securities, and another is non-fixed income or variable income bearing securities. So fixed income कौन सी securities में मिलता है? What is fixed return, fixed income bearing securities? So as I had explained you, when we invest in debenture, bonds, etc., we get a fixed rate of interest. So these are referred to as fixed income bearing securities. So let us start with our first sum. On 1st January 2013, 1012% debentures of rupees 100 each of Shiva Limited were held as investment by Mr. Dharmesh. So Mr. Dharmesh is an individual who on 1st January 2013 held, means he already had 1000 debentures which bear a return of 12%. One debenture is of 100 each, and the company of whose debentures these are, the debenture belong to Shiva Limited. So 12% debenture of rupees 100 each of Shiva Limited were held as investment by Mr. Dharmesh at a cost of 91,000. So the cost of debenture is 91,000. Can anyone tell me the nominal value of the debenture? The face value of the debenture? There are 1,000 debenture of 100 each. The face value of the debenture is 100. So 1,000 into 100, it is 1 lakh. So the nominal value or the face value of the debenture is 1 lakh, but the cost at which Mr. Dharmesh obtained the investment is 91,000. Interest is payable. This is very important. When the interest will be paid by Shiva Limited, डिबेंचर के लिए इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिलेगा. मतलब ये जो शिवा लिमिटेड है, इट pays its interest on 31st December. So 31st December is the due date when the company will pay interest to its debenture holders. And Mr. Dharmesh is one of the debenture holder. So we have to remember this 31st December, because 31st December is the day when the company will get, 31st December is the day when Dharmesh will get his interest, and company will be paying, Shiva Limited will be paying interest on 31st December. So very important day. We will have to remember 31st December. On 1st April 2013, to rupees 20,000 of such debenture were purchased by Dharmesh at 98, at rupees 98 कम interest. कम interest मतलब क्या? ये 98 rupees में interest amount is included. So come interest means this amount includes the interest price, includes the interest also. So 1st April there is a purchase at come interest 20,000 rupees, 20,000, and one debenture is of 100. So 20,000 divided by 100, it will be 200 units जो हमने खरीदा है 1st April को.
फिर 1 सितंबर 2013 को ₹30,000 of such debenture were sold at, means there is a sales on 1 September 2013. ₹30,000 of such debentures were sold at ₹96 x interest. मतलब ये 96 rupees में there is no interest amount involved. And 30,000 rupees, 30,000 means एक यूनिट एक डिबेंचर 100 rupees का है. So 30,000 divided by 100, it will be 300 debentures, 300 units of debenture जो हमने सेल किया. एंड 1 दिसंबर को अगेन हमने 50,000 और सच डिबेंचर, ₹50,000 और सच डिबेंचर वेर सोल्ड एट ₹99 कम इंटरेस्ट. दिसंबर में हमने फिर से सेल किया. दिस टाइम इट इज कम इंटरेस्ट, मीन्स इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन ₹99. इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेट को हमें हमारा इंटरेस्ट मिला. ड्यू डेट इज 31 December. व्हेन वी रिसीव्ड अवर इंटरेस्ट, prepare investment account for 12% debentures of Shiva Limited in the books of Mr. Dharmesh, valuing closing stock as on 31st December 2013, applying AS 13. AS 13 is for investment accounting. Accounting standard 13 is for investment accounting. The debentures were quoted at ₹93. What is the market value of investment? Sorry, what is the market value of debentures on 31st December 2013? It is ₹93 per unit. So per debenture कितना अमाउंट है मार्केट में डिबेंचर का, क्या वैल्यू चल रहा है ऑन 31st December 2013? What is the price, market price of debenture on 31st December 2013? It is ₹93 per debenture. So we will have to do the valuation of closing stock on 31st December 2013. So now let us start this sum in the books. What is the name of the investor? In the books of Mr. Dharmesh. So Mr. Dharmesh is the investor, individual investor. And which account we will have to prepare? We will have to prepare, prepare investment account. Prepare what we will have to prepare? We will have to prepare investment account. See, this is investment. Investment account of 12% debentures of Shiva Limited, that we have purchased the debentures, 12% debentures of Shiva Limited, and this is an investment. Investment means asset. Normally 12% debenture मतलब लाइबिलिटी होता है, बट 12% डिबेंचर शिवा लिमिटेड के लिए लाइबिलिटी है. बट मिस्टर धर्मेश ने तो शिवा लिमिटेड का डिबेंचर्स को परचेज किया है. ही इज अ डिबेंचर होल्डर. ही हैज डन इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर्स ऑफ शिवा लिमिटेड. सो इस धर्मेश के लिए ये इन्वेस्टमेंट है. धर्मेश के लिए उसने जो 12% डिबेंचर्स खरीदा है शिवा लिमिटेड का, दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर हिम. इन्वेस्टमेंट मीन्स asset. Asset has a opening balance. So let us see the format. Date, particulars, working note, nominal value, interest, cost, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4. दो और कॉलम we will have to insert. Just carefully look at the format. अभी सिर्फ
ध्यान से देखो कैसे प्रिपेयर करना है फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, nominal value, interest and cost. Here again it will repeat date, particulars, okay. So let us name it date, particulars, working note, nominal value. I'm writing in short form. Nominal value means the face value. Nominal value को हम face value भी बोलते हैं. This is what is the income. What is the income? Interest is the income. What will be received on 12% debentures and cost. Same we will have to repeat here also. This is debit side and this will be credit side. Let us write only date, particulars, working note, nominal value, so this is our format. This is debit side and this is credit side. This is debit side. This is credit side. And this is for your understanding that I have written debit side and credit side. One more thing what is important is when is the due date? Due date is the date when interest will be paid. So due date is, what is the due date? कब इंटरेस्ट पे करेगा कंपनी शिवा लिमिटेड? उसके इन्वेस्टमेंट्स आई मीन उसके डिबेंचर्स में को इंटरेस्ट विल बी पेड on 31st December every year. Means Shiva Limited will be paying interest on 31st December every year. So this date is very important. Now tell me, सबसे पहले कौन सा डेट दिया है? 2013 1st Jan. ध्यान में रखो, in this sum what information will be given in this chapter? Information will be given related to the investment. Related to the investment. Investment के बारे में information दिया रहेगा कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट खरीदा, कितना सेल किया, all those things will be given. So हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, all those information will be there. लेकिन सबसे पहले 1st January 2013 को ये मैंने डेबिट साइड में, why did I write in the debit side? ये that I will tell you first. On 1st January 2013, 1012% debentures of ₹100 each of Shiva Limited were held. Held मतलब ये हमारे पास इतना डिबेंचर का बैलेंस है, मीन्स हमने पिछले साल में खरीदा होगा. आज 1st January 2013 में हमारे पास 1000 डिबेंचर्स है. हमने आज नहीं परचेज किया, हमने पहले परचेज किया है. कितना परचेज किया है?
1000 यूनिट्स परचेज किया है 12% डिबेंचर्स का। बट ये जो हमने 12% डिबेंचर्स खरीदा है ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज अ असेट एंड असेट हैज अ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। यस, दिस इज अ ओपनिंग बैलेंस एंड डेबिट इसलिए बिकॉज इन्वेस्टमेंट मतलब असेट, और असेट को डेबिट बैलेंस होता है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे what is the, see here what is the nominal value 1000 डिबेंचर 100 रुपीज का कितना होता है 1000 डिबेंचर 100 रुपीज का 1000 into 100 if you will do you will get 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट का कॉलम में बाद में बताती हूँ। कॉस्ट कितना है इट इज गिवन 91,000, cost is given 91,000. Now, what about this interest? This interest is the opening interest जो मिलना चाहिए। मतलब कंपनी जो है वो इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखो कंपनी डेली इंटरेस्ट नहीं पे करेगी। कंपनी विल पे द इंटरेस्ट ओनली ऑन ड्यू डेट्स। company may pay interest twice in a year, thrice in a year, once in a year, but interest will be paid only on those due dates। जो कंपनी है वो इंटरेस्ट पे करेगी। जो शिवा लिमिटेड है जिसका डिबेंचर्स खरीदा है मिस्टर धर्मेश ने, दैट कंपनी विल पे द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ओनली ऑन ड्यू डेट। तो टेल मी लास्ट इंटरेस्ट कभी पे किया है 31st दिसंबर को, बिकॉज कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ओनली ऑन 31st दिसंबर। तो इंटरेस्ट 31st दिसंबर को मिला है और ये 1 जैन है, मतलब अगला दिन। इधर कोई भी इंटरेस्ट ड्यू है क्या, कल के दिन ही इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में कोई भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है। ओपनिंग बैलेंस में कोई भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है बिकॉज इंटरेस्ट वॉज पेड यस्टरडे ओनली। तो पूरा इंटरेस्ट धर्मेश को मिल चुका है। देर इज नो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेंडिंग ऑन द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में 31st दिसंबर मीन्स 1 डे बिफोर कल ही इंटरेस्ट मिल गया। तो आज के डेट में कोई भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, दैट मीन्स इंटरेस्ट में हमने नील लिखा बिकॉज देर इज नो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बिकॉज yesterday only company must have paid interest to Mr. Dharmesh because the due date of paying interest is 31st December and today is 1st January. So there will be no interest in the opening balance of opening balance में कोई भी outstanding interest नहीं है। तो यहाँ पे जो interest लिखते हैं हम, it is the interest outstanding on opening balance। So एक चीज़ हम लोग के लिए बहुत ये चैप्टर में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द वर्किंग नोट्स, जिसके लिए हम अलग से वर्किंग नोट का कॉलम भी है। सो वर्किंग नोट में जो हमारा पहला वर्किंग नोट है दैट इज विल ऑलवेज बी आवर कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे पर्टिकुलर यूनिट नॉमिनल वैल्यू, पर्टिकुलर यूनिट नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे हम क्या कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर, 1 मिनट, I want to write here particulars, units, nominal value means face value of the debentures, and this is cost of debentures. This is our column, okay?
दिस इज अवर कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो जैसे ही हमने ओपनिंग बैलेंस डाला, हम कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस। अभी तक सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का एंट्री हुआ है, कितना यूनिट्स है डिबेंचर्स, हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव इन द ओपनिंग बैलेंस, वी हैव 1000 यूनिट ऑफ डिबेंचर्स। नॉमिनल वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, इट इज 1 लाख एंड कॉस्ट वाज गिवन इन द क्वेश्चन 91,000। सो हमारे पास ये हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर कोई परचेस हुआ तो हम ऐड करेंगे, कोई सेल हुआ तो माइनस करेंगे, सो दैट वी आर अपडेटेड दैट एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर दैट हाउ मच बैलेंस वी आर हैविंग। इसलिए हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद जो हमने सेकेंड ओपनिंग बैलेंस में जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, वो तो नील है ना, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज नील, देर इज नो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। नाउ लेट अस मूव अहेड। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर, वो हमने ऑलरेडी लिखा है, ड्यू डेट इज 31 दिसंबर। नाउ ऑन 1 अप्रैल 2013, ₹20,000 of such debentures were purchased by Dharmesh at ₹98 कम इंटरेस्ट। सो हम क्या करेंगे, कौन से डे में, डे से ऑन विच इज द डेट 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हमने क्या किया है, परचेसेस किया है ना। परचेसेस को डेबिट साइड में क्यों लिखा, ध्यान में रखना, परचेस मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे। इफ देयर इज अ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट विल कम इन द डेबिट साइड, sale of investment will come in the credit side. Purchase will come in the debit side, sale will come in the credit side. So यहाँ पे परचेस हुआ है, परचेस करेंगे तो व्हाट विल गो आउट, परचेस करेंगे तो कैश बैंक अकाउंट, पैसा बाहर जाएगा, करेक्ट। कितना नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू दिया है ऑलरेडी 20,000, नॉमिनल वैल्यू इज 20,000 एंड कितने में खरीदा है, व्हाट इज द कॉस्ट, 98 कम इंटरेस्ट, मीन्स ये 98 रुपीज में इंटरेस्ट का अमाउंट भी है एंड कॉस्ट ऑल्सो इज देयर। दिस 98 rupees at which we have purchased the investment includes both interest and cost, but हमें साथ में नहीं, अलग अलग बताना है। So what we will do, we will go to our second working note, calculation of कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना है, कितना यूनिट है, 20,000 में अगर एक डिबेंचर 100 रुपीज का है तो हाउ मेनी यूनिट्स वी मस्ट हैव परचेज, 20,000 डिवाइड बाय 100, we get 200 units. Getting my point, how we got 200, 20,000 का डिबेंचर है and one debenture is of 100, so 20,000 divide by 100, it becomes 200 units and कितने में खरीदा, 98 rupees में। so 200 into 98 करो, how much you are getting, 200 into 98, how much we get, 19,600। तो इसमें से ये हमारा जो प्राइस है, इट इज इंक्लूडिंग बोथ, कम इंटरेस्ट मीन्स इट इज इंक्लूडिंग द कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मीन्स जब भी
फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी परचेज करते हैं या सेल करते हैं, वी ऑल्सो पे द इंटरेस्ट टू द सेलर। मीन्स क्या होता है, हम डिबेंचर का प्राइस के लिए भी पैसा देते हैं और हम इंटरेस्ट के लिए भी पैसा देते हैं, बिकॉज डिबेंचर में इंटरेस्ट मिलना कंपलसरी है। इसलिए वी calculate both the cost, means whenever there is a purchase or sale, both interest and cost should be exchanged। means मैं खरीदूंगी तो मुझे जितने टाइम के लिए मैंने सिक्योरिटी मेरे पास रखा था उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट भी मिलेगा, बिकॉज कंपनी इंटरेस्ट सिर्फ ड्यू डेट में देगी, एंड कंपनी इंटरेस्ट ड्यू डेट में उसको ही देगी जिसके हाथ में सिक्योरिटी होगा। तो आपने अगर 10 महीना रखा है और सेल किया तो 10 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, बिकॉज 10 मंथ तक आपने ये सिक्योरिटी को रखा था। सो देयरफॉर इंटरेस्ट हम हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकालते, इंटरेस्ट हम हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकालते। हाउ मच इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? टेल मी हाउ मच इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। rate of interest is 12%, means 12 upon 100 into, टेल मी कितना, ये कौन सा मंथ है? अप्रैल है। तो लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया था 31 दिसंबर को। लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया था 31 दिसंबर को। तो कितने महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है? जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, बिकॉज इट इज 1 अप्रैल, अप्रैल महीने का इंटरेस्ट नहीं है, इट इज 3 मंथ्स। गॉट इट? कैसे हमने कैलकुलेट किया? कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कभी दिया था? दिसंबर में, एंड दिस इज अप्रैल। मीन्स कितने, जब हम खरीदेंगे तो सामने वाले को कितने मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे? जनवरी का, फेब्रुवरी का एंड मार्च का। व्हाट 3 मंथ? जनवरी टू मार्च, दीज आर द 3 मंथ्स। तो कितना अमाउंट आता है? कितना अमाउंट आता है? 20,000 into 12% into how much? 3 divided by 12, it is how much? 600। मतलब कितना? 19,600 में 600 is interest, then how much will be the cost? How much will be the cost? Cost for debenture is 19,000। डिबेंचर का कॉस्ट है 19,000। ये कौन सा वर्किंग नोट है? इट इज वर्किंग नोट 2, और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट 600 एंड हियर कॉस्ट इज 19,000। सो हम लोग को कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी ऐड करना पड़ेगा। आर परचेज, हाउ मच यूनिट? 200 यूनिट परचेज किया। हाउ मच? 20,000 नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट इज 19,000। अब इसको ऐड करो, कितना मिलेगा? 1200, 1,20,000, and this will be how much? 1,10,000, correct? 1,10,000, is it correct? So this is 1,10,000। तो ये हो गया परचेज डन, कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी रिकॉर्ड कर लिया। Now we will move ahead and see on 1st September 2013, rupees 30,000 of such debenture were sold at rupees 96 x interest। x interest मतलब ये 96 रुपीस में इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है, हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। What is the date? 2013 1st September। So this is the date। सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा। सो व्हाट वी विल राइट? बाय। सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड में, बिकॉज
इन्वेस्टमेंट कम होगा, जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो असेट कम होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, असेट परचेज करते हैं तो ज़्यादा होते हैं तो डेबिट में, तो सेल वी विल राइट इन द क्रेडिट साइड। कितना सेल किया, नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू है 30,000 एंड सेल किया है एक्स इंटरेस्ट में, एक्स इंटरेस्ट मीन्स 30,000, 30,000 में यूनिट कितना हो जाता है, 100 रुपीज का एक यूनिट है, मतलब 300 इंटू 96 विच इज कमिंग टू 28,800, इट इज 28,800। ये कैसे मिला 28,800, अंडरस्टूड ना, 300 यूनिट्स है, 300 इंटू 96, 300 कैसे मिला, दिस इज 30,000 नॉमिनल वैल्यू, वन डिबेंचर इज ऑफ 100, सो 30,000 डिवाइड बाय 100 इज 300 यूनिट, इंटू 96 किया तो 300 इंटू 96 इज गिविंग अस 28,800। बट अभी इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो लेट अस गो टू द वर्किंग नोट and calculate the interest on x interest sales तो कितना यूनिट है, इंटरेस्ट हम हमेशा किस पे निकालते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे, तो डायरेक्टली इधर दिखते 30,000 into how much rate of interest, 12%, 12 upon 100 या 12% also you may write, 30,000 into 12% into this is September, तो लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था कंपनी ने, Shiva Limited had paid interest on 31st December. So count the month, January, February, मार्च, जनवरी से काउंट करेंगे, ये हम हमारा यूनिट सेल कर रहे, कंपनी ने इंटरेस्ट लास्ट दिसंबर को दिया है, सो दिसंबर के बाद वी विल ऑलवेज कंपेयर फ्रॉम द ड्यू डेट एंड ड्यू डेट इज 31st दिसंबर, सो तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बिकॉज सितंबर फर्स्ट है तो सितंबर को काउंट नहीं करेंगे, 8 डिवाइड बाई 12 कितना इंटरेस्ट होता है, कितना इंटरेस्ट होता है, अमाउंट कैलकुलेट करो, 30,000 इंटू 12% इंटू 8 डिवाइड बाई 12 वी आर गेटिंग 2,400, so interest मिल गया, this is working note 3 and we have got the interest 2,400। now tell me, हम जो भी परचेस करते हैं ना, इट इज हायर प्राइस में खरीदा या लोअर प्राइस में खरीदा, बट जब भी सेल करते हैं तो एक और चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट, जब भी सेल करते हैं तो क्या फाइंड आउट करते हैं, जब भी सेल करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं लेस सेल्स, सेल्स करते हैं तो व्हाट इज, हम जब भी सेल करते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यस वेरी करेक्ट, प्रॉफिट और लॉस, जब भी सेल करते हैं तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, प्रॉफिट और लॉस, तो उसके लिए वी शुड नो हमने कितने में सेल किया, अवर नेट प्रोसीड्स, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस, एक्स इंटरेस्ट सेल्स प्राइस, कितने में सेल किया, सी ईयर हमें कितना मिला, नॉमिनल वैल्यू इज द फेस वैल्यू, इट विल नेवर चेंज, बट हमने कितने में सेल किया, 28,800
अब इसमें से लेस करेंगे, दैट इज नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट मतलब जो हमने 28,800 में सेल किया उसका कॉस्ट कितना है। जो हमें 28,800 इज द प्राइस वी रिसीव्ड, बट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दोस यूनिट्स। सो हमने कितना यूनिट सेल किया, हमने सेल किया है 300 यूनिट। उसका नॉमिनल वैल्यू है 300 इंटू 100 दैट इज गिवन 30,000। नाउ वी विल हैव टू वेटेड एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वेटेड एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दैट इज अगर 1,20,000 का कॉस्ट, अगर 1,20,000 मतलब हमारा 1,200 यूनिट का कॉस्ट 1,10,000 है, 1,10,000 है, तो जो हम लोग कितना यूनिट सेल कर रहे, 30,000 ना, 30,000 यूनिट सेल कर रहे, उसका कॉस्ट क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, you all know to do a cross multiplication। 30,000 into 1,10,000, 30,000 into 1,10,000 divide by 1,20,000 करोगे तो हमें आंसर आएगा, हाउ मच यू गॉट, 27,500 is the weighted average cost. This I have done for you all to understand how to do the cross multiplication. Okay, for you all to understand how to do the cross multiplication. So this is done. हमें 27,500 मिल गया, तो 27,500 इज द कॉस्ट। सो यहाँ पे हमारे पास 900 बच गया, यहाँ पे 90,000 बच गया। अब 1,10,000 में से भी माइनस करो, 1,10,000 minus 27,500, we are getting 82,500 as balance, 82,500। now we can find our profit or loss। यहाँ पे देखो हमने कितने में सेल किया, हमने कितने में सेल किया, हमने सेल किया 28,800 में, एंड उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट है 27,500। नाउ टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस। हमें मिला 28,800 पर वो चीज का कॉस्ट था सिर्फ 27,500, मीन्स इट्स अ प्रॉफिट, इट्स अ प्रॉफिट। हमने 27,500 का चीज 28,800 में सेल किया, तो 1,300 का प्रॉफिट है। तो हम प्रॉफिट किधर रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। यहाँ से वो डायरेक्टली पीएनएल के क्रेडिट में ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। सो प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेट क्या है, सितंबर ना, 1 सितंबर को सेल किया, तो प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर क्या है, वर्किंग नोट नंबर 4 है। सो विल राइट हियर 4, एंड लास्ट कॉलम में प्रॉफिट किधर लिखना है, लास्ट कॉलम में, कॉस्ट के कॉलम में, क्योंकि 28,800 में हमने सेल किया बट वो चीज सिर्फ 27,500 का था, तो हमें प्रॉफिट हुआ। टू पीएनएल अकाउंट, इन द पीएनएल अकाउंट विल बी बाई प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट साइड में आता है इनकम इन द पीएनएल अकाउंट, पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सब एक्सपेंस आता है, क्रेडिट में सब इनकम। सो ये टू पीएनएल अकाउंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल बी इन द क्रेडिट साइड शोइंग द इनकम प्रॉफिट। सो ये हो गया, इतना हो गया। अभी हम लोग जा सकते हैं टू द नेक्स्ट एंट्री, दैट इज ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या हुआ है, अगेन सेल हुआ है, सो अगेन क्रेडिट साइड में आएगा 1 दिसंबर। तो सेल करेंगे
तो व्हाट विल हैपन, बाय कैश बैंक अकाउंट, बाय कैश बैंक अकाउंट कितना सेल किया, 50,000 मीन्स 500 यूनिट्स, 50,000 मीन्स 500 यूनिट, किस में सेल किया, 99 कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट एंड कॉस्ट आर टुगेदर शोन। सो हम लोग जाएंगे हमारा फिफ्थ वर्किंग नोट में एंड फाइंड आउट करेंगे कम इंटरेस्ट सेल प्राइस कितना दिया है, कम इंटरेस्ट सेल प्राइस 99, पर यूनिट कितना है 500, 50,000 डिवाइड बाय 100, 500 यूनिट एंड 99 कम इंटरेस्ट। सो 500 इंटू 99 करेंगे तो हमें पता चलेगा कम इंटरेस्ट सेल प्राइस कितना है, इट इज 49,500, 49,500। इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये तो ये 49,500 में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, बट हमें इंटरेस्ट अलग से शो करना है, कॉस्ट अलग से शो करना है। सो इंटरेस्ट में से 50,000, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं, कितना इंटरेस्ट है 12%, 12/100 या 12% लिखोगे तो भी चलेगा। हाउ मेनी मंथ, दिस यू टेल मी, लास्ट इंटरेस्ट पे किया था कंपनी ने, शिवा लिमिटेड ने 31 दिसंबर को, तो ये 1 दिसंबर है, मीन्स हाउ मेनी मंथ, 11 मंथ्स ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 दिसंबर है इसलिए दिसंबर को काउंट नहीं किया, 11। तो हमें आंसर आ रहा है 5,500, we are getting the answer 5,500। so how much is the cost, I mean net sale proceed, हमारे लिए कितना इनकम आया है, कॉस्ट में कितना लिखेंगे, हाउ मच इज नेट सेल प्रोसीड, इट इज 44,000। सो नाउ हमें दोनों मिल गया, गो हियर राइट डाउन कितना 5,500 एंड 44,000, वर्किंग नोट नंबर क्या है, इट इज 5। नाउ जब भी सेल करते तो एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेन एवर वी डू अ सेल वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट, जब भी सेल करते हैं तो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस, calculating profit or loss is important whenever there is a sale, purchase करते हैं तो it is higher price or lower price, whether we have paid higher price or we have paid lower price, but there is no situation of profit loss. Profit loss is calculated only when we do a sale. So what we will do here, let us go to the next working note, calculation of प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे कितना हमारा कॉस्ट या नेट सेल प्रोसीड कितना है, नेट सेल प्रोसीड भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हम इसको हमारा सेल्स प्राइस, सेल प्राइस भी बोल सकते हैं, या वहाँ पे जो था हमने वो लिखा ना एक्स इंटरेस्ट सेल्स प्राइस, क्योंकि इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था, यहाँ पे कम इंटरेस्ट में हमने इंटरेस्ट सेपरेट करके व्हाट इज द सेल प्राइस, इट इज 44,000। अब ये 44,000 में लेस करना है वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस। सो वेटेड एवरेज प्राइस के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 50,000 इंटू 82,500 डिवाइड बाय 90,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 50,000 इंटू 82,500 डिवाइड बाय 90,000,
how much we are getting? 45,833. Correct answer. 45,833. So let us write down. हमारा कॉस्ट कितना है? 45,833. So is it a profit or a loss? Tell me. Is it a profit or a loss? हमने सेल किया 44,000 में, बट उसका कॉस्ट है 45,833. मीन्स हमें ये लॉस हो गया. कितने का लॉस हो गया? लॉसेस ऑफ 1833. सो लॉस है तो यहाँ पे लिखेंगे. लॉस किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में. इधर से इट विल गो टू द P&L अकाउंट डेबिट साइड. तो यहाँ पे लिखेंगे दिस. यहाँ पे चाहिए तो ब्रैकेट में वी कैन राइट प्रॉफिट, और इधर हम लोग लिखेंगे बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस. Directly this is working note number 6, and directly in the last column 1833. This is also done. This is also done. Now what we will do, now they are said interest is received on due date. अब 1 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 1 दिसंबर के बाद आएगा 31 दिसंबर. ये डेट को हम भूल नहीं सकते हैं. सी प्रॉफिट, 1 मिनट बिफोर गोइंग देयर, हमारा लॉस क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. क्रेडिट से ये P&L अकाउंट के डेबिट में आएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. P&L अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, और ये प्रॉफिट रहेगा तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में, P&L के क्रेडिट में, इनकम में ऐसे आता है. तो अभी लॉस हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड में शो किया. एंड वन मोर थिंग हियर, सी अभी हमें ड्यू डेट में आ गए. 1 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर आता है व्हेन वी विल गेट आवर इंटरेस्ट. सो वी विल शो हियर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वी विल शो हियर बाय कैश बैंक अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट. ये क्या है हमारे लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट. इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट है हमारे लिए. तो लेट अस गो एंड सी ड्यू. आज के दिन में हमारे पास कितना यूनिट्स है? 900 में से 500 सेल कर दिया तो 400 यूनिट है. ये 40,000 है. ये माइनस करो 82,500 से. 82,500 माइनस 45,833, इट इज 36,667. So here how many units are there with us? देखो जब कंपनी ने अपना इंटरेस्ट दिया ऑन 31 दिसंबर, तब हमारे पास बैलेंस कितना था? ओनली 40,000. सो हमें इंटरेस्ट कितने के लिए मिलेगा? जितना यूनिट्स हमारे पास है, जितना हमारे पास है यूनिट्स, उसके लिए ही इंटरेस्ट मिलेगा. सो अवर 7th वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेट है 31 दिसंबर एंड कंपनी ईयर में एक ही बार इंटरेस्ट देती है. तो 40,000 इंटू 12% इंटू हाउ मेनी मंथ्स? 12 डिवाइड बाई 12. लास्ट इंटरेस्ट लास्ट ईयर 31 दिसंबर को मिला था और अभी फिर से मिलेगा, तो पूरा 1 ईयर हो जाएगा. 12 upon 12 is equal to 1. So how many interest we are getting? How much amount of interest we are getting? 4,800. So हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉलम है, इंटरेस्ट का कॉलम यहाँ पे लिखेंगे 4,800 and this is our 7th working note. 4,800. This is also done. अभी क्या करना है? अभी
हमें बोला है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये बुक सबसे पहले एक काम करते हैं। देखो यहाँ पे हमने हमारा बुक को कभी क्लोज किया, व्हाट इज गिवन, हम बुक को कभी क्लोज करते हैं, अगर 1 जन को स्टार्ट किया है तो 31 दिसंबर को हम लोग इन बुक को क्लोज करेंगे। मिस्टर धर्मेश ने अपना बुक 1 जन को अगर स्टार्ट किया है तो क्लोज कब करेगा, 31 दिसंबर को। द बुक विल बी क्लोज ऑन 31 दिसंबर। तो अब 31 दिसंबर को हमें बुक्स को क्लोज करना होता है। और एक और चीज हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा ही नहीं, बिकॉज सेम डे कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है। एक लास्ट कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखना है कि क्या बोला है कंपनी ने, डिबेंचर्स वेर कोटेड एट ₹93 ऑन 31 दिसंबर 2013। हमें मार्केट वैल्यू दिया है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट में, लास्ट जो वर्किंग नोट है वहां पे हम हमारा जो सिक्योरिटीज है उसको वैल्यू करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज डिबेंचर्स, उसको वैल्यूएशन करेंगे। हमारा कॉस्ट वैल्यू क्या है डिबेंचर्स का, कॉस्ट वैल्यू क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर में देखो 36,000 हमारे बुक्स के हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 36,667 एंड मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट का क्या वैल्यू है, मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट का क्या वैल्यू है, 93 रुपीस। नहीं, देखो मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 93 रुपीस, मार्केट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 93 रुपीस, एक यूनिट का 93। और हमारे पास कितना यूनिट्स है, हमारे पास 400 यूनिट्स है। मार्केट में हमारा जो शिवा लिमिटेड का डिबेंचर्स है उसका वैल्यू चल रहा है 93 पर यूनिट, 93 पर यूनिट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 400 यूनिट्स का कितना वैल्यू रहेगा, इफ 1 यूनिट इस 93, मार्केट में हमारे डिबेंचर का वैल्यू 93 रुपीस चल रहा है, तो 400 यूनिट्स हमारे पास डिबेंचर का है, मल्टीप्लाई करके बोलो हाउ मच इट विल कम, 37,200। मीन्स मार्केट वैल्यू इज हायर देन द कॉस्ट वैल्यू। हमारे हिसाब से द वैल्यू इज 36,667, बट मार्केट में वैल्यू इज 37,200। So there is a profit on valuation. There is a profit on valuation of how much rupees? 37,200 minus 36,700, which is equal to how much profit? How much is the profit? 36,67 minus 37 कितने का, 533 का, ₹533 का प्रॉफिट है। बट तुमको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, हम प्रॉफिट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज प्रॉफिट जब तक हाथ में, अभी तक हमने हमारे सिक्योरिटीज को सेल नहीं किया है, वी हैव नॉट सोल्ड आवर सिक्योरिटीज, सो दिस प्रॉफिट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं वैल्यूएशन। यहाँ पे हम लोग कैसे वैल्यू करेंगे, वैल्यूएशन एज पर कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू whichever is less, whichever is less। यहाँ पे लेस क्या है, कॉस्ट वैल्यू, तो ये हमारा वैल्यूएशन रहेगा। कैसे, कुछ भी नहीं करना है हमें, जब भी प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन आता है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बुक को बंद करना है। तो हम देखेंगे कि हमारा 1,20,000 आ रहा है, इधर इधर कितना आ रहा है, 91 प्लस 91,000 प्लस 19,000। पहले हमने कॉस्ट वैल्यू का टोटल निकाला, अभी हम मार्केट वैल्यू का टोटल निकालेंगे 300। तो इधर भी सेम लिखना है, 1,20,000
एंड 300. सो हम लोग जो बैलेंस निकालेंगे ना 31 दिसंबर को जो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस रखेंगे, ओपनिंग बैलेंस इज इन द डेबिट साइड, सो क्लोजिंग बैलेंस विल बी हियर, बाई बैलेंस कैरीड डाउन. तो क्या रहेगा आंसर, यहाँ से 80 कम किया तो इधर 40,000 आएगा, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 36,667, जो ऑलरेडी हमें हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर में मिल चुका है. जब इसको बैलेंस करेंगे तो हमें ये आंसर आएगा. एज पर अवर कॉस्ट स्ट्रक्चर दिस शुड टैली व्हेन, तो ऐसे टैली हो रहा है ये. अब एक लास्ट कॉलम बचा है इंटरेस्ट, जिसका कौन सा साइड हैवी है, क्रेडिट साइड हैवी है. तो ऐड करो इंटरेस्ट को, 2400 प्लस 5500 plus 4,800, which is giving 12,700. Here also it is 12,700. फिर -600 करने के बाद 12,100 बैलेंस मिलेगा. एंड ये कब क्या करेंगे, दिसंबर 31 को हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस आया है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंसिंग फिगर ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट में जो भी बैलेंस आएगा दैट विल गो टू द P&L अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. P&L अकाउंट में देखा रहेगा तुमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. सो ये P&L अकाउंट में इंटरेस्ट का जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो P&L अकाउंट में जाएगा, और हमेशा इट विल बी इन द डेबिट एंड इट दैट इनकम विल गो इन द P&L अकाउंट क्रेडिट साइड. विद दिस sum is done. Thank you very much everyone.